in the last class, we looked at the exceptions to the octet rules. So these were the exceptions. Let me just show that to you once. So these are the exceptions, right? BeF2, BeCl2, BF3, BCl3. ये जो है, these are the compounds जो Lewis acids है. These are electron deficient species. ठीक है ना? यहाँ पे beryllium, boron, these are always electron deficient. So that's why they act as a Lewis acid. Okay. Then we have phosphorus and sulfur. They can expand the octet. ठीक है. So they have so these are some compounds actually. और ये अपन आगे देखेंगे कि there are many compounds जहाँ पे this is actually visible. ठीक है. काफ़ी compounds ऐसे दिखेंगे अपने को जहाँ पे octet rule मतलब जो octet है that is expanded to accommodate more electrons. Okay, not just 8 electrons. So for example जैसे even noble gases actually forms we know even xenon actually forms compound like XeF2. ठीक है. xenon is a noble gas, remember. So octet के हिसाब से इसने तो compound बनानी नहीं चाहिए, isn't it? लेकिन फिर भी ये compound बनाता है. This is actually not in the notes, ध्यान में रखना. So you might want to write this thing down. Okay. xenon fluoride, xenon oxyfluoride भी होता है, XeO2F2 if I am not wrong. Okay. You also get XeO2F2, XeOF4, XeO3, इस तरह के कंपाउंड. तो देखो xenon के विच इज itself is a noble gas जिसका octet complete है, उसके बावजूद भी it is actually forming loads of compounds. Okay, so these are also exceptions to the octet rule. There are also species जैसे for example if you take NO2, NO, ठीक है ना, ये दोनों जो species है these have unpaired electrons. Okay, or odd numbered electrons. ठीक है ना. So essentially odd number है तो octet तो complete हो ही नहीं सकता, isn't it? So that is the thing basically with these guys. They are unpaired electrons, so you don't have octet. Octet में तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए. इनमें तो ऑड नंबर है तो ऑक्टेट नहीं हो सकता. सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल. ठीक है. अब इनके जो स्ट्रक्चर्स है, सारे जो स्ट्रक्चर्स है, ये अपने को है सिलेबस में, सब अपने को देखना है. एंड दैट इज द रीज़न व्हाई आई एक्चुअली नो. ओके. Otherwise, you know, who would look into these things, right? But these are in our syllabus, so we have to look at the structures of these compounds. ये जो NO2, NO है, ये अपन नाइट्रोजन फैमिली जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे इनका स्ट्रक्चर. दीज आर वेरी इजी, अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वाई, राइट, जस्ट लिव इट लाइक दैट. जब नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हैलोजन फैमिली डिस्कस करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर्स देखेंगे. Okay, so you don't have to worry about this right now. Just remember that octet rule is not basically a hardcore rule. There are a lot of exceptions to the octet rule. Lewis acids hai, these are expanded octet, right? These are the compounds जो noble gases है, even then they are actually forming compounds. इनमें unpaired electrons है, odd numbered electrons है, still they are stable. So यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि you can also have multiple covalent bonds, जैसे डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट. सो यू कैन हैव दीज टाइप ऑफ, और इनको भी अपन लुईस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है. सो इनको अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली, इनको अपने को ही डिस्कस करना. सो इट इज़ नॉट वर्थ इट कि वी जस्ट स्पेंड टाइम ऑन इट. तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स और सो एंड यू विल हैव दिस थिंग क्लियर्ड अप. ठीक है ना. Okay, so here's a review question. The number of electrons being shared in the compound carbon disulfide CS2. ठीक है ना. पूछा क्या है, ध्यान में रखो, क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी काम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शेयर्ड पूछा है इन कार्बन डाइसल्फाइड. आंसर करो इसको फॉर इट. सो इसका सोल्यूशन देख लो. देखो कार्बन डाइसल्फाइड, सबसे पहले तो इसका लुईस डॉट डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा. ठीक है. यूजिंग द फार्मूला वी नो, बट द ईजीएस्ट वे एज आई सेड कि तुमको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बिल्ड अ लुईस स्ट्रक्चर. कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र 2 है, तो ऑब्वियसली सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लो. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर सल्फ़र फिर से आएगा, दैट इज़ द थिंग.
और अब शेयरिंग करना चालू कर दो, ठीक है। देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सो जस्ट डू दैट एंड देन यू शेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स हियर ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट यू गेट इज कार्बन, ठीक है ना। इसने देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो 1 2 3 4 सल्फर, और इधर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे देर आर दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 सल्फर के ऊपर, सो वो भी ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। तो ये लुईस डॉट डायग्राम हो गया। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सॉरी, okay, so that is carbon disulfide basically. This is very similar to the structure जो है वो similar to carbon dioxide CO2। देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप में है, so you're gonna get same structure, okay। so essentially यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, दिख रहे हैं तुमको, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर्ड है, okay। so 8 इलेक्ट्रॉन्स being shared, same is the case with carbon disulfide, carbon dioxide। अगर तुमको ये क्लिक हो जाता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड में 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, शुडंट बी अ प्रॉब्लम, यू कैन इमीडिएटली आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, इट दे कुड आस्क हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड, ओके। सो इसका भी आंसर 80 आएगा बेसिकली, क्योंकि हर सल्फर के ऊपर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल हर सल्फर के ऊपर 4, तो 2 सल्फर के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, ओके। इसको अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था, ओके। जिनका जिनका सही आया, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो अभी जो अपन आ रहे वो अपन आ रहे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सो इसेंशियली कोवेलेंट बॉन्ड जो मेन जो टाइप होता है, ओके, वो होता है सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये 2 टाइप के बॉन्ड्स जो होते हैं, दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, राइट। सो दीज आर ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन द मेन टाइप जो होता है, जो सबसे कॉमन होता है, दैट इज सिग्मा एंड पाई, ठीक है। अब सिग्मा को मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, सिग्मा एंड पाई तो अपने को मालूम है, ओके, एवरीबडी नोज पाई, ओके। सो सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। तो देखो किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत आसान है, बहुत जनरल है, और ये कैसे फॉर्म होते हैं ये अपने को मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमने क्या देखा कि सिग्मा बॉन्ड जैसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। पाई बॉन्ड में भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है किस तरह से शेयर हो रहे हैं, इसमें ये डिफरेंस आता है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको मालूम है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। सो वी हैव S P D F टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। जो मेन जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो SP या SP इन दोनों से बनते हैं, ठीक है ना। ये इससे बनते हैं अपने सिग्मा बॉन्ड्स, ओके, या फिर इससे बनते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट। देयर इज ऑल्सो जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये किस तरह से होता है ये आगे देखेंगे, ये अभी फिलहाल अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे कोवेलेंट बॉन्ड में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, लेकिन जो डी ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होता है इसमें, द बॉन्ड इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट, ठीक है। नॉट नेसेसरीली ऑल द बॉन्ड्स मेड बाय डी आर कोऑर्डिनेट, एंड ऐसा भी नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में हमेशा डी ऑर्बिटल होता है, बट एक जनरल फॉर्म में अपन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि वी हैव एस ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो जैसे ये एस ऑर्बिटल है, तो 2 एटम है, जैसे हाइड्रोजन ले रहे हैं, ओके। हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में, बराबर है ना। और एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इजंट इट, स्फेरिकल ऑर्बिटल है। तो मान लो कि ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, दोनों में ये इस तरह का ऑर्बिटल है, ठीक है ना। क्या एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, नहीं, बराबर है। एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि स्फेरिकल रहने के वजह से इट इज़
नॉन डायरेक्शनल, ये याद है ना, बराबर है, इज दैट क्लियर? अब मैं ये ऑर्बिटल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करवा रहा हूँ और इससे मेरा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है, ओके, वो हो रहा है ऑर्बिटल्स, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। दिस बॉन्ड इज एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अपना एक टाइप हो गया एस एस सिग्मा, ये मेरा एक टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक ये कर लेते हैं अपन कि ओके HCl बराबर है, ये ले सकते हैं, या एंड नाउ आई एम ओवरलैपिंग दिस, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑर्बिटल है वो s है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एक्चुअली इन p, यस और नो। ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन तो क्या आएगा 3p5, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, 5 में आ गया है ना, p में आ गया इसेंशियली। तो ओवरलैप कौन से ऑर्बिटल का हो रहा है, s का और p का, ठीक है ना। s और p ओवरलैप हो रहा है ये केस में, ठीक है। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, p में 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं। अभी ये ऑर्बिटल्स जो है ये ओवरलैप हो रहे हैं और अपने को एक नए टाइप का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दिस इज sp सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। सो दिस इज sp सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ss सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो p ऑर्बिटल होता है, ऑब्वियसली s ऑर्बिटल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल, ये किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। लेकिन बाय ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन या कन्वेंशन बोल सकते हैं, ट्रेडिशन बोलने का, ट्रेडिशन कल्चर में होता है, इजंट इट। कन्वेंशन, अगर कन्वेंशन की बात करें तो जो अपनी ट्रेडिशनल एक्स एक्सिस जो होती है उसको अपन बोलते हैं इसमें z, ठीक है। ये हमेशा ओवरलैप जो होता है वो हमेशा अपन बोलते हैं z एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है। दिस इज बेसिकली अ कन्वेंशन, इट रियली डजेंट मैटर, ठीक है। बाय कन्वेंशन हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है दैट एक्सिस इज अ z एक्सिस। तो इसका मतलब ये भी z ऑर्बिटल हो गया, क्लियर है ना। तो ये pz है, दिस इज एक्चुअली pz एंड दिस इज s, ठीक है ना। और s का और इसका ओवरलैप हो रहा है, सो यू कैन सी इस तरह से अपना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो इसेंशियली अगर मैं ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों कंपेयर करूँ, एस एस सिग्मा एंड एस पी सिग्मा, अब बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एस बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन एस पी बॉन्ड, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द साइजेस। एस एस जो ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल दैट इज ऑलवेज अ स्मॉलर ऑर्बिटल देन द पी ऑर्बिटल, बराबर है। पी ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल छोटा होता है, isn't it? स्फेरिकल होता है। Just think about the size, isn't it? Spherical है, okay. So let me just take that out, and then these are the 2 s orbitals, ठीक है। And then I try to overlap them, okay. So if I try to overlap them, you can see that ये काफ़ी हद तक overlap हो सकते हैं, right? The center of it there is a center, है ना, nucleus, okay. So up to certain point this can actually overlap and in some cases the overlap can be significant, ठीक है। ये जो overlap होता है that is very significant, okay. It can be, so this is the overlap, orbital overlap, ठीक है। Simply because the orbital जो होता है s orbital ये ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। रिमेंबर मैंने तुमको पेनिट्रेटिंग ऑर्डर के बारे में बताया, एस पी डी और एफ, ओके। एस सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, एफ सबसे कम, तो ये ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, मतलब ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, इजंट इट। और न्यूक्लियस के नज़दीक रहने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो भी न्यूक्लियस के नज़दीक रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक में है तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ओके, ये बॉन्ड जो बनेगा ये छोटा बॉन्ड रहेगा, इजंट इट।
मेक सेंस हो ना? ये जो बॉन्ड बनेगा दिस इज स्मॉल बॉन्ड, एंड स्मॉल बॉन्ड्स क्योंकि छोटा बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दीज आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव पुल रहेगा, इजंट इट? और ज़्यादा अट्रैक्टिव पुल मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बराबर है कि नहीं? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक रीजनेबल है कि नहीं है? और वही अगर मैं sp का देखूँ, ठीक है ना, तो sp में थोड़ा कम ओवरलैप रहेगा बिकॉज p ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज्ड, जैसे इसने बताया था, है ना? तो p ऑर्बिटल इज स्लाइटली मोर डिफ्यूज्ड, ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर होता है, दूर होता है न्यूक्लियस से, तो बॉन्ड जो रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा sp बॉन्ड, और sp बॉन्ड थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसका मतलब इससे थोड़ा सा वीक रहेगा। बोथ द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें तो SH बॉन्ड इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर दैन SP बॉन्ड। क्लियर है क्या? सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट, और ये हम बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स दैट वी लर्नड, उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना? इसको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको, ओके? तो ये हो गया SS बॉन्ड, ये हो गया SP बॉन्ड, और दूसरा होता है फिर PP बॉन्ड, ओके? तो यहाँ पे देखो PZ ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, और यहाँ पे मेरे को एक नया टाइप का सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, दिस इज PP सिग्मा बॉन्ड। सो 3 टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स है, SS सिग्मा, SP सिग्मा एंड PP सिग्मा, ठीक है ना? ऑब्वियसली अब तुमको इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अब मालूम हो जाना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग SS, उसके बाद SP, और उससे कम, सबसे कम रहेगा PP। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है, इस तरह से अपन ने ये C2H5 का स्ट्रक्चर बनाया है ना। पहले सबसे पहले लुईस डॉट डायग्राम बनाया इसका, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए, और फिर हाइड्रोजन्स के साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप किए, ठीक है? तो ये सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने, और ये सारे सिंगल बॉन्ड्स है। तो ये जो, इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये कौन से टाइप का सिग्मा बॉन्ड है? दिस इज अ PP सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना? और ये जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स है, ये कौन से टाइप के होंगे फिर? SP सिग्मा बॉन्ड, बराबर है? दीज आर SP सिग्मा बॉन्ड। ये बीच वाला जो है दैट इज PP सिग्मा बॉन्ड, ओके? बट व्हाट अबाउट दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे? हमको मालूम है ये भी शेयर होते हैं, isn't it? We know that these are also shared, ठीक है? लेकिन ये किस तरह से शेयर होंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है ना? जस्ट थिंक अबाउट कि ये किस तरह से शेयर होंगे, ठीक है? सो सिचुएशन इज लाइक दिस। ये अपना सेंट्रल कार्बन है, ओके? लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। दिस इज आवर सेंट्रल कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है ना? उसके ये 1 2 3, ओके? ये 1 2 और ये 3, ये 3 बॉन्ड हो गए उसके, ठीक है? उसी तरह से ये कार्बन के 1 2 और 3, 1 2 और ये तीसरा बॉन्ड, ठीक है ना? ये कॉमन बॉन्ड हो गया 2 कार्बन के बीच का। नाउ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन इन दिस p ऑर्बिटल, रिमेंबर इट्स इन अ p ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके? Is it possible for these electrons to be shared in this manner? क्या शेयर हो सकते हैं क्या ये इस तरह से? So essentially ये जो ऑर्बिटल्स है, these are like this, these are parallel, okay? ये parallel orbitals है. It is not possible for these orbitals to actually kind of like go like this and share the electrons. It's not possible, isn't it? So how is it possible that we form a double bond? क्योंकि अभी देखो कार्बन का जो है, दोनों कार्बन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, isn't it? If you look count the number of electrons in, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन के पास। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट कार्बन, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कार्बन, ठीक है? कार्बन की दिस इज बेसिकली कार्बन समझ लो, ठीक है? और ये इसके p ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना? और इसने ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बेसिकली ये सिग्मा बॉन्ड, ये ना
कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड, और ये ऑर्बिटल इस तरह से है, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ठीक है। नाउ कार्बन इज सो स्मॉल दैट दीज ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर, क्लोज इनफ दैट दे कैन ब्रश अगेंस्ट ईच अदर, इस तरह से। समझ में आ गया? ऑलराइट, yeah, they are so close to each other. Carbon is a very small element, isn't it? One of the reason carbon की जो properties है, इतनी amazing properties है, is basically because of, तुम लोग तो रीज़न बताए गए थे, राइट? टेट्रा वैलेंसी बताई थी कि कार्बन की वैलेंसी 4 की है, दैट्स वाई इट मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स। और दूसरा रीज़न है कि बिकॉज इट मेक्स पाई बॉन्ड्स, ओके, या मल्टीपल बॉन्ड्स, ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना। डबल ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना सकता है? Because of its size, it's so small that it can come so close to each other that these orbitals can literally overlap laterally. Literally overlap laterally. ठीक है ना? Just think about it. They overlap इसको बोलते हैं अपन lateral overlap. ठीक है? ये बॉन्ड कैसा बन रहा है? बस मतलब kissing bonds है. These are basically like kissing bonds. These orbitals are kissing, and there is a small overlap in this orbital that is sufficient to delocalize the electrons, share the electrons. ठीक है, तो ये electrons share हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल सिनारियो ये है, ध्यान में रखना कि ऑर्बिटल सीन क्या है कि ऊपर है प्रोबेबिलिटी तो नीचे भी है, ओके। दिस इज एक्चुअली वन बॉन्ड, जो ब्लैक में मैंने दिखाया यहाँ पे हाईलाइटर से, दिस इज जस्ट वन बॉन्ड। हम दिखाते हैं इसको दो तरह से, पार्ट में दिखा रहे हैं इसको। द रीजन फॉर दैट इज अगर प्रोबेबिलिटी शेयरिंग के ऊपर है तो नीचे भी है, ओके। सो दिस इज वन बॉन्ड एंड देन यू हैव दिस सिग्मा बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज लैटरली ओवरलैप्ड पी ऑर्बिटल्स। समझ में आया क्या? अगर पी ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करते हैं, लैटरल ओवरलैप है ना, दिस इज, इसको अपन साइड वाइज ओवरलैप भी बोलते हैं या लैटरल ओवरलैप भी बोलते हैं। दिस आर हेड ऑन ओवरलैप, ये हेड ऑन ओवरलैप है, ओके। इससे अपन बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और अगर यही पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप होते हैं, लैटरली ओवरलैप होते हैं या साइड वाइज ओवरलैप होते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। इज दिस क्लियर? कौन से अदर एलिमेंट्स पाई बॉन्ड बन, जो छोटे हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, बराबर है, इनके डबल बॉन्ड्स होते हैं। डज सिलिकॉन मेक डबल बॉन्ड्स? कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, ओके, नहीं। क्यों? सिलिकॉन का साइज बड़ा है, सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। यू हैव दिस पी ऑर्बिटल्स बट दीज कैनॉट ओवरलैप, क्योंकि सिलिकॉन मोटा है, ठीक है ना। मोटा रहने के वजह से वो ऑर्बिटल्स में जमता नहीं है बराबर, क्लियर है। सो सिलिकॉन नहीं बना सकता डबल बॉन्ड, ओके। इधर जाते हैं नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नहीं बना सकता है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फिर से फॉस्फोरस बड़ा है, दो फॉस्फोरस बड़े बड़े आ गए, नहीं होता। क्लियर है क्या? सो साइज इज वेरी रेलेवेंट फॉर पाई बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए साइज, तो छोटे एलिमेंट ही पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बड़े एलिमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में क्या सिचुएशन है? एक तुम्हारा कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिग्मा बॉन्ड, इजंट इट? दिस इज गोइंग टू बी योर सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा कौन सा बॉन्ड रहेगा? पाई बॉन्ड। अंडरस्टूड है? किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, बचे हुए जितने भी बॉन्ड है सारे पाई बॉन्ड, ओके। दैट इज द सिचुएशन। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। यू गोना सी दैट एक्सेप्शन लेटर ऑन। ये एक ही एक्सेप्शन है, ओके, और अनकॉमन एक्सेप्शन है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो एक्सेप्शन आएगा तब मैं बोलूँगा इसको याद कर लो, हो गया, दैट्स इट, क्योंकि एक ही एक्सेप्शन है। अदर देन दैट, इन एवरी मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, देयर इज ऑलवेज वन सिग्मा बॉन्ड, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये सिचुएशन, इसमें कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल? ये पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना। कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें। सो यहाँ पे ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ओके, अगर सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पे भी एक बॉन्ड जो रहेगा वो रहेगा, मतलब पहला बॉन्ड जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद में जो बॉन्ड्स बनते हैं दीज आर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, ओके, प्लस देयर आर दीज 2, सो टोटल देखा जाए तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ओके, so this is something you need to know, you need to be able to evaluate when you see the structure। ठीक है, and that is true for all structures। ठीक है, जहाँ पे भी पाई बॉन्ड आता है डबल बॉन्ड है, ओके, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, अगेन 1 सिग्मा 1 पाई। ओके, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें भी 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ओके, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक है, सो एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहेगा, जो बचे हुए बॉन्ड्स है दे आर ऑल, सो यू कैन हैव आइदर 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, या तो 1 पाई बॉन्ड रहेगा या तो 2 पाई बॉन्ड रहेंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, जब ये ओवरलैप होगा उसके बाद ही ये ओवरलैप होंगे। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पाई बॉन्ड है, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे मैंने बोला देयर इज़ वन एक्सेप्शन, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, सो होल्ड ऑन। ओके, तो इसको थोड़ी देर बाद जानेंगे ना, थोड़ा सा टीवी सीरियल जैसा है ना, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, आइए देखिए, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, बट आई एम गोना शो दैट यू देयर इज दैट वन एक्सेप्शन जहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। ओके, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। अदर देन दैट इन एवरी अदर केस दैट आई हैव नोन, उसमें राइट यू हैव मिनिमम 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, एंड मैक्सिमम 1 सिग्मा बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब पाई बॉन्ड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। क्लियर है क्या ये? ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल बेसिकली, तो थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब इस एग्जांपल में बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें बताओ। सो देखो इसमें आंसर क्या रहेगा। सो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, 2 में से 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 में से 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, और पाई बॉन्ड्स बचे हुए हैं बेसिकली। सो पाई बॉन्ड क्या है? ये 1 2 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड किस तरह से अपन। सो मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट एक्चुअली, दैट इज़ वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चंस तुमको आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, प्रैक्टिस में तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, वेदर यू गेट दिस इन एग्जाम। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से तुमको आएगा जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। अभी अपन ने जस्ट केमिस्ट्री की शुरुआत की है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बिकम वेरी नेचुरल टू यू एंड आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो that's the way basically you have to practice in such a way that it becomes natural to you. सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये अपने को आगे काम आएगा, फिलहाल नहीं। ओके, तो अगर मान लो कि जस्ट नाउ लुक एट इट, या 1 सेकंड। ओके, सो देखो ध्यान रखो यहाँ पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो लेट्स से you have a sigma bond, right? So let's say this is your sigma bond, single bond. Okay, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या फिर यू कैन से यू नो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो भी किसी तरह का एक तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड अगर है सिग्मा, तो अगर ये सिचुएशन है मान लो, ठीक है ना, और ये कोई दूसरा हाइड्रोजन इसको, ये दूसरा बॉन्ड कनेक्टेड है इस तरह से, है ना, 2-3 इसको एटम्स लगे, बीच में ये कार्बन को कनेक्टेड है इस तरह से, एंड सेम थिंग यहाँ पे। तो अगर ये सिचुएशन है, तब मैं पूरे नहीं दिखा सकता, बट जैसे ये बॉन्ड्स है बेसिकली, ओके, और ये 2 एटम के बीच का बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस तरह से रोटेट हो सकता है, फ्री रोटेशन अराउंड का सिंगल बॉन्ड। ओके, इट कुड बी कार्बन कार्बन और सम अदर बॉन्ड। सो इसको मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोल देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो बॉन्ड यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जैसे दैट बॉन्ड, राइट, दैट इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर सिंगल बॉन्ड है
तो ये रोटेट हो सकता है बड़े आसानी से, बराबर है। सो यू कैन हैव रोटेशन। और ये जो कार्बन्स है दे आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग अराउंड दैट सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, दोनों तरफ से। सो दे आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग अराउंड दैट सिंगल बॉन्ड इवन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रोटेशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो बड़े आसानी से मॉलिक्यूलर कोलिजन से ही मिल जाती है। सो ये जो एटम्स है वो बड़े आसानी से रोटेट होते हैं अराउंड दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। समझ में आया ना। लेकिन इफ़ नाउ यू हैव अ डबल बॉन्ड, सो लेट्स से दिस इज अनदर बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है और इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ इस तरह से, ठीक है, समझ में आया ना, दिख रहा है। ओके, सो इसको मैंने इस तरह से होल्ड किया। अब ओके, अब मैं इसको रोटेट करने जाऊँगा तो क्या ये रोटेट होता है? इज़ इट पॉसिबल टू रोटेट? अगर मैं रोटेट करने जाऊँगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज अ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये लैटरली ओवरलैप से बना हुआ है ऑब्वियसली, बट दिस इज द सिचुएशन, या। और इसको मैं अगर ओवरलैप करने रोटेट करने जाऊँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं होते, सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है। ये क्लियर है क्या? अंडरस्टूड है ये, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन है वो आगे है, अपने को आएगा, ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेकिन दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। सो नेक्स्ट टाइप का जो बॉन्ड अपन देख रहे हैं दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखो अभी तक थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं। हमने आयनिक बॉन्ड्स देखे, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, राइट। उसके बाद अपन ने देखा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये तीन टाइप के, एस एस, एस पी और पी पी, ये तीन टाइप के सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रांग, पाई बॉन्ड्स आर वीक। क्यों वीक होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं? लैटरल ओवरलैप से बन रहे हैं, इजंट इट। सो लैटरल ओवरलैप, ज़्यादा ओवरलैप नहीं होता है, ये थोड़ा सा बस इसका लाइक ऑर्बिटल्स आर किसिंग, ठीक है ना। तो इसके वजह से इट्स अ वीक बॉन्ड, ओके। सिग्मा बॉन्ड्स आर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर बॉन्ड ब्रेक होना है तो पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जनरली पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, कि पाई बॉन्ड ये वीक बॉन्ड है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो ये अपन ने अभी तक देखा है। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, हमने बोला कि जो एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन ले रहे हैं अपन और हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दो एलिमेंट्स हैं एंड दे आर मेकिंग अ बॉन्ड। तो ये क्या कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के बॉन्ड को मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, इक्वल शेयरिंग है उस इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इस कैन बी अ सिग्मा बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड, ठीक है ना। पाई बॉन्ड में भी इक्वल शेयरिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड में भी इक्वल शेयरिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। समझ में आया? एक एलिमेंट क्या कर रहा है? दूसरे एलिमेंट को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस तरह बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें शेयर्ड पेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सिंगल एटम। एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन्स ला रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा एलिमेंट खाली आता आया था, एक एलिमेंट ने दो इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे ये अमोनिया है, इजंट इट, दिस इज अमोनिया, ठीक है। ये जो डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के। और जो क्रॉस में अपन दिखा रहे हैं, ओके, दीज आर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इन्होंने शेयर करके ये अमोनिया मॉलिक्यूल बना दिया, इजंट इट। इस तरह से ये अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी देखा है, ठीक है। एंड दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, सो ये शेयर हो गए 3। सो यू गॉट नाइट्रोजन इज क्वाइट हैप्पी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन इज ऑल्सो हैप्पी, इसके पास डुप्लेट आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपन बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं ऐसे एनवायरनमेंट में डालता हो कि देर इज़ मतलब ये एसिडिक एनवायरनमेंट में डाल दिया इसको मैंने, इसके
इसको सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें एसिड है, ठीक है ना। अब एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन, इजंट इट। अब H प्लस आयन बोले तो क्या है, इज नथिंग बट अ प्रोटॉन। H प्लस आयंस क्या होता है, इट्स नथिंग बट अ प्रोटॉन, इजंट इट। जैसे तुमने, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जस्ट अ प्रोटॉन, राइट, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन में, आइसोटोप में होता है, बट नॉर्मल हाइड्रोजन में नहीं होता है। और दिस इज अ ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट है, ये शेल है, तो उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब मैंने, सो दिस इज हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, सो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो निकाल दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ प्रोटॉन। इसको अपन बोल रहे हैं H प्लस, दिस इज नथिंग बट अ प्रोटॉन। क्लियर है क्या, मतलब H प्लस इज नथिंग बट अ प्रोटॉन, और कुछ भी नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, सो इट्स नॉट इवन एन एटम, ऑलराइट। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पेसीज जो अपन एनकाउंटर करते हैं इन रिएक्शंस या केमिस्ट्री में। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पेसीज, प्रोटॉन, ठीक है, H प्लस आयन, इसको अपन बोलते हैं H प्लस आयन, ओके, बट इट्स नथिंग बट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन इज सो अनस्टेबल कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इट्स अनस्टेबल इन द सेंस कि इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेसीज। जस्ट थिंक अबाउट, कोई एटम है, एटम इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, एज कंपेयर टू एटम द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। जस्ट इमेजिन, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, यहाँ पे तो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोटॉन की, ओके, सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब प्रोटॉन इटसेल्फ है ना सस्टेन नहीं कर सकता, ओके, सो व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। इसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ढूंढ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा उसको, इट विल बी राइट देयर, इजंट इट। तो क्या होगा कि जैसे अगर अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे कहीं पे प्रोटॉन आ जाता है H प्लस, ठीक है, दिस इज जस्ट नथिंग बट अ प्रोटॉन। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किसी भी हालत में लेना ही लेना है, इसने कहीं से भी लेगा लेकिन लेगा, ठीक है, ये स्टैंड अलोन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब हमारे पास ये स्पेसीज बन गया, ये हो गया अमोनियम आयन। यू कैन सी दैट नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको अपन एरो से इंडिकेट करते हैं, ओके, ये इसका लुईस डॉट डायग्राम है, यू कैन सी दैट ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर एक एक शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो सिचुएशन है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, सो दिस इज एक्चुअली अ पाई बॉन्ड, ठीक है ना, और सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आई एम सेइंग, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम मॉलिक्यूल में इस तरह से इंडिकेट करते हैं, यू कैन सी दैट दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में। क्लियर है क्या, या दिस इज हाउ वी शो द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन मजे की बात यह है कि वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड देयर इज नो डिफरेंस इन अ नॉर्मल रेगुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी नॉर्मल रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमोनियम आयन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अब ऑब्वियसली ये अमोनियम आयन है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सो इसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मैं मतलब इसका चार्ज के हिसाब से दे रहा हूँ मैं इसको, बिकॉज देर इज 1 लेस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे 4 बॉन्ड है, ठीक है ना, मैं किसी भी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है। दे आर बेसिकली आइडेंटिकल, ये चारों के चारों बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, लेकिन आई नो
that one of this bond is actually a coordinate bond. ठीक है ना? So any bond, I can just take a random अक्कड़ बक्कड़ करके तुम बोल सकते हो कि this is a coordinate bond. That's it. ठीक है ना? किसी एक बॉन्ड को अपन दिखा रहे एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज देयर इज नो वे टू टेल कि विच बॉन्ड इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. समझ में आ गया ये? सो ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड. ठीक है ना? इसमें से 3 जो बॉन्ड रहेंगे, लेट्स कॉल दिस एज 1, 2 and 3. ये जो 3 बॉन्ड्स रहेंगे दिस आर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये वाले. ओके, 1, 2, 3. और एक बॉन्ड जो होता है we are showing that as a coordinate bond because in theory that is what it is. लेकिन हम इसको distinguish नहीं कर सकते because all the 4 bonds are actually identical. Is this clear? ये understood है क्या? ठीक है. So ये जो coordinate bond होता है इसको अपन dative covalent bond या simply dative bond बोलते हैं. ठीक है ना? इसको अपन देखो क्या हो रहा है कि जैसे you have this NH3 अमोनिया ले लिया. ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया. ठीक है, तो दिस इज डोनर. ठीक है, इसको अपन डोनर बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. और डोनर जो होता है दैट इज ऑलवेज अ लुईस बेस. रिमेंबर दैट. ठीक है, डोनर जो होता है दैट इज ऑलवेज अ लुईस बेस. तो डोनर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. किसको? किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज को. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लुईस एसिड. ठीक है ना? सो ये हो गया, यू कैन से दिस इज आइदर डोनर और लुईस बेस. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टर और लुईस एसिड. ठीक है, इसीलिए इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं अपन. देखो, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं. और जो एरो होता है, ठीक है, एरो दैट इज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर. ये लॉजिकल है. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेटिव बॉन्ड. ठीक है ना, डेटिव बॉन्ड या फिर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या फिर मोर कॉमनली डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड. ठीक है, ओके. इन जनरल the compounds with coordinate bond have properties that are intermediate between ionic and covalent. ठीक है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये आयनिक और कोवेलेंट के बीच की होती है. अनदर एग्जांपल जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, दैट इज़ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए. ठीक है, सो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और ये ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड वी हैव ऑक्सीजन शेयर कर दिया. ठीक है, एक और शेयर करना पड़ेगा. देखो, कार्बन को 4 की ज़रूरत है तो ये 4 शेयर करेगा. ठीक है ना? सो लेट्स डू दैट. और ऑक्सीजन को कितनी की ज़रूरत है, 2 की. बराबर है. सो यहाँ पे काम नहीं बन रहा. ठीक है, एक और ऑक्सीजन होता तो अपना काम बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते. इजंट इट? यहाँ पे अपने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है. ओके, सो ऑक्सीजन का ऑक्टेट, oh boy, excuse me, really tired, just give me 1 second. yeah, so ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अभी, isn't it? तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. ये हो गया कार्बन. यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ. ठीक है ना? एंड देन वी हैव दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये एक और ये एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर है. दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देर आर 4 या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गए. नाउ इफ यू लुक एट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है. कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होने का है. ओके, सो व्हाट हैपन्स कि ये जो वन ऑफ द लोन पेयर ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर रहा है. बराबर है. इसने क्या कर दिया, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर दिया. तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है, कार्बन. ठीक है, अब इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है. अब ये 2 में से एक इसने डोनेट कर दिया
तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ। और देर इज this lone pair of electron on the oxygen. This is the correct Lewis structure of carbon monoxide. क्लियर है क्या? इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जब भी अपन स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में यही दिखाते हैं, इजंट इट। अब इसमें से एक जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। डोनर ऑक्सीजन है, एक्सेप्टर कार्बन है, और टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आती है कार्बन के ऊपर, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, वो टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 6 इज बेसिकली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। इसमें 4 बेसिकली नॉर्मल रेगुलर कोवेलेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 जो है या एक बॉन्ड जो है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंडरस्टूड है क्या? ये क्वेश्चन है डबल बॉन्ड के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अप्लीकेबल, तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। सो देखो ये क्वेश्चन में डबल बॉन्ड जो होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इट प्रिवेंट्स द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम रोटेटिंग, ठीक है ना। जैसे ये जो है, तो इसमें ये जो एटम्स है ये रोटेट नहीं हो सकते, ओके। इस तरह का रोटेशन प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का रोटेशन नहीं होता, होता है। इसके लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, इसके लिए अपने को बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये करने के लिए अपने को बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। सो एज फार एज देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, ठीक है, रोटेशन नहीं होगा। अगर मैं एनर्जी देता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना। जब ये डबल बॉन्ड था, मान लो कि दिस इज़ लाइक अ डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो रोटेट होगा, फिर से डबल बॉन्ड बन सकता है, राइट। सो दैट एक्चुअली हैपन्स, राइट, बट एज फार एज देयर इज अ डबल बॉन्ड ये रोटेट नहीं हो सकता, ठीक है। डज नथिंग टू ऐड टू और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रोटेशन। देखो ऐसा तो है ही नहीं ना, राइट। इट प्रिवेंट्स द रोटेशन, डज नथिंग कैसा बोलेंगे, ओके, understood? So that's basically incorrect, that's why correct answer is B. ठीक है, I think we'll stop here and we'll continue with new concept in the next class. Okay, thank you very much. I'll see you in the next class. Bye.